मानव जीवन में डॉक्टरों की भूमिका होती है महत्वपूर्ण। कहा जाता है उन्हें धरती का भगवान। ईश्वर के लिए जीवन को बचाने, स्वस्थ रखने में होती है उनकी जरूरत। होती है उनके प्रति असीम श्रद्धा, सम्मान। हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। लेकिन पूंजी बाजार ने बदल दिया है उनकी चाल, चरित्र। अस्पताल बदल रहे हैं कत्लगाह में। ना मानवता ना राहत, केंद्र में है सिर्फ मुनाफा, मुनाफा, मुनाफा। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार करें, मैं अंजलि वाजपेयी। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं शीघ्र ही लौटती हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसनसोल में धूमधाम से खुला स्थापित ब्रांड का अस्पताल। दुर्गापुर में अपार सफलता के बाद हेल्थ वर्ल्ड ने कदम रखा था जिला मुख्यालय में। दावा था बेहतर सुलभ मानवीय इलाज का, लेकिन बेनकाब हो गया मुखौटा। इलाज के दौरान मौत हो गई मरीज की। 4,35,000 का भुगतान किया था मरीज के परिजनों ने। 5 लाख की बिलिंग हुई अलग से। उसके बाद दी गई परिजनों को धमकी, 5 लाख का करो अतिरिक्त भुगतान, अन्यथा मरीज का शव सड़ा देंगे अस्पताल में। अंतिम बार मूवी नहीं देखने देंगे परिजनों को। परिजनों का आरोप है न्यूरो सर्जरी करने के बाद डॉक्टर चले गए छुट्टी पर। इलाज का जिम्मा किया था जनरल फिजिशियन को हैंडओवर। क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए धरती के कथित भगवान की? तो करते हैं राज्य में मेडिकल के हाल की कुछ पहलुओं को है खंगालते, ताकि हो सके खुलासा मेडिकल के नाम पर लूट तंत्र का। विस्तृत में जाने पूरी कहानी, बन जाएगी महाग्रंथ। अस्पताल खोलने के समय मानवता की होती है बड़ी बड़ी बातें। आम जनता को दिया जाता है संदेश, लूट के दौर में मिलेगी राहत। मानवता के हर पहलू होंगे मौजूद, लेकिन बाद में होता है खुलासा। नाम होता है मेडिकल सेवा का। अस्पताल बन गए नोट छापने के कारखाने। मरीजों की एंट्री से पहले तय होता है पैकेज। लाशों का भी किया जाता है सौदा। ऑपरेशन कर राम भरोसे छोड़ दिए जाते हैं मरीज। परिजनों को नहीं लिया जाता है विश्वास में। प्रेशर बनाकर मजबूर किया जाता है हर ट्रीटमेंट के लिए। मौत के बाद थमा दिए जाते हैं बड़े बड़े बिल। आसनसोल के सृष्टि नगर में स्थित हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल अमानवीय चेहरा दिखा मेडिकल सेवा का। धनबाद निवासी मरीज थे कुंतल साहा। उनके पुत्र अरित्रा साहा ने कहा, কিসের জন্য আপনাদের উঠাইয়ে আমি নিজের বাবাকে এখানে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে ভর্তি করেছিলাম নিউরো ডিপার্টমেন্টে। ডাক্তার অপারেশন করে ডাক্তার ছুটিতে চলে যান আর হ্যান্ডওভার করে দিয়ে যায় জেনারেল ফিজিশিয়ানকে, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডাক্তারকে হ্যান্ডওভার করে দিয়ে চলে যান। আমার বক্তব্য হলো, আমি যে ডিপার্টমেন্টে ভর্তি করলাম ওই ডিপার্টমেন্টের লোক এলো না কেন? আমার বাবাকে আমাকে না কিছু ইনফর্ম করে ছেড়ে দিয়ে চলে যান, না কিছু ইনফর্ম করে, না কিছু বলে। এখন বক্তব্য হলো 17 তারিখে আমার বাবার হার্ট অ্যাটাক আছে। 17 তারিখ থেকে কালকে 1 তারিখ পর্যন্ত আমার বাবা ভেন্টিলেটারে ছিলেন। আর কালকে দুপুরবেলা 2টো নাগাদ হসপিটাল থেকে ফোন আসে কি আপনার বাবার খুব সিরিয়াস, আপনার বাবা মারা গেছেন। এবার আমরা কালকে সকালবেলা আমরা নিতে এসেছি বডি। আমাদের বডি ছাড়ছে না। এখন 24 ঘন্টা হয়ে গেল, বডি ছাড়ছে না। বলছে টাকা পেমেন্ট করতে হবে 5 লাখ টাকা, তাহলে আমরা বডি ছাড়বো। আর না হলে আমরা পেমেন্ট এখন 4,36,000 আমরা এখন পর্যন্ত আমরা পেমেন্ট করে দিয়েছি। আর এখন 5 লাখ টাকা আমাদের আরও চাইছে, নাহলে বডি বলছে সারিয়ে দেবো। আমরা বডি আমরা ছাড়বো না, পেমেন্ট আমাদের করতে হবে। কিসের জন্য টাকা চাইছে? বডি ছাড়ার জন্য, ট্রিটমেন্ট। আর আমরা 17 তারিখেই বলে দিয়েছিলাম, ক্লিয়ার করে দিয়েছিলাম কি আমাদের টাকা আর নেই। যে ট্রিটমেন্ট করেছে তার কাগজপত্র দিচ্ছে কিছু না, কাগজপত্র সব ওদের হ্যান্ডওভারে। কাগজপত্র কিচ্ছু ওরা দিতে চাইছেন না। এই যে টোটাল টাকাটা চাইছে 8 লক্ষ বা 9 লক্ষ, সেটা কি পারপাস খরচা হয়েছে সেই কাগজ দিচ্ছে না? কোনো কাগজ দিচ্ছে না আমাদেরকে। কবে ভর্তি করেছিলেন? 6 তারিখে ভর্তি করেছিলাম। পেশেন্টের নাম লেট কুন্তল সাহা। আমি ওনার ছেলে অরিত্র সাহা। আমাদের বাড়ি ধানবাদে, ঝাড়খণ্ড। আমরা ভেবেছিলাম এখানে ঝাড়খণ্ডে ভালো ট্রিটমেন্ট হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ওই হিসাবে আমরা এখানে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে তো আমরা উল্টেই পড়ে গেলাম। 5 লাখ টাকাও দিলাম, পেশেন্টকে হারালাম। এখন আরও 5 লাখ টাকার ডিউ দিয়ে দিচ্ছে। আর বলছে পেশেন্ট আমরা বডি ছাড়বো না। বডি না ছাড়া পর্যন্ত বলছে বডি ছাড়বো না। আমাদের টাকায় দিতে পারবো না। যা ছিল আমার বাবাই ছিলেন, আমাদের বাবাই ছিলেন। বাবাই কামাতেন, দিতেন। যত পেরেছি আমরা দিয়েছি। আর আমরা সম্ভব না দেওয়ার কোনো টাকা। এখন আপনারা কথা বলতে গেছেন, কি বলছে ওরা? বলছে কি আমাদের এখন 2 লাখ টাকার মতো আরও পেমেন্ট করতে হবে, নাহলে আমরা বডি ছাড়বো না। বডি আমরা রেখে দেবো, হসপিটালে আমরা রেখে দেবো। আর বলছে বডিকে আমরা সারিয়ে দেবো।
बिल का भुगतान न करने से शव देने से किया गया इनकार, दी गई धमकी, पूरी राशि का भुगतान नहीं तो अस्पताल में ही सड़ा देंगे शव। अस्पताल के प्रतिनिधि के बतौर सामने आए कमलेंदु मिश्रा। उन्होंने कहा, पूरे मामले की जांच कर रहे सीएमओएच जांच पूरी होने के पहले नहीं करेंगे टिप्पणी। पेशेंट राइट्स चार्टर में किया गया है प्रावधान, बिल न चुकाने पर भी शव को रोक नहीं सकता कोई भी अस्पताल। मृतक के परिजनों को है शव प्राप्त करने का अधिकार। परिजनों के आरोप से क्या बनती है स्थिति? क्यों जांच के नाम पर चुप्पी है अस्पताल प्रबंधन की? क्यों नहीं सामने लाए गए इलाज से संबंधित सभी तथ्य? इतनी ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए हर बिजनेस में। मानवता के दावे गए भाड़ में। अस्पतालों की इस भूमिका को स्वीकार करते हैं सभी, देते हैं सलाह, बचना है तो हेल्थ कंपनियों से करा लो बीमा, खर्च का इलाज करेगी वहन। लेकिन इस क्षेत्र में सक्रिय है निजी कंपनियां, उनका लूट तंत्र है इन अस्पतालों से भी अधिक जटिल विस्तारित। एंट्री है बेहद आसान लेकिन निकलना है मुश्किल। राशि लेने के लिए करना पड़ता है संघर्ष। समझते हैं इस नेटवर्क को भी। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने मई 2004 में जारी किया था निर्देश। अस्पताल में डिस्चार्ज की मंजूरी मिलने के 3 घंटे के अंदर तक कर देना होगा पूरा भुगतान, ताकि मरीज लौट सके आराम से अपने घर। IRDAI की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट है चौंकाने वाली। बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 12.9% दावों को कर दिया खारिज। राशि थी 15,100 करोड़ रुपए की। पूरे साल में कुल दावा राशि थी 1,17,000 करोड़ की। भुगतान किया केवल 83,493 करोड़ रुपए का। किया गया है नेशनल सर्वे। 10 में से 6 बीमा पॉलिसी धारकों को अस्पताल से छुट्टी के लिए करना पड़ा है 6 से 48 घंटे का इंतज़ार। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स ने किया है सर्वे। कंपनियां जानबूझकर करती हैं देरी ताकि पॉलिसी होल्डर थक जाए प्रतीक्षा कर, स्वीकार कर लें कम दावा राशि। जान लें कुछ और चौंकाने वाले दावे को। 3 वर्षों में दावे दायर करने वाले 10 में से 5 पॉलिसी होल्डर ने दी जानकारी। उनके दावों को बिना वाजिब कारणों के कर दिया गया खारिज या फिर मिली मामूली राशि ही। मात्र 25% बीमा धारकों का है कहना बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से स्वीकृत हुआ उनका दावा। 6% ने किया दावा। कुछ आगे पीछे के बाद मिली दावे की पूरी राशि। अस्पताल से छुट्टी के लिए प्रतीक्षा करने वाले मरीजों के उत्तर हैं चौंकाने वाले। 21% ने किया दावा। दावा निपटान प्रक्रिया में लगे 24 से 48 घंटे। 12% ने कहा सिस्टम में लगे 12 से 24 घंटे। 14% ने किया है दावा लगे 9 से 12 घंटे। केवल 8% ने कहा डिस्चार्ज तुरंत होने का मिला मौका। 12% का कहना है लगे 1 से 3 घंटे। बात चल रही है मेडिकल सेवा की। अब तक चर्चा थी केंद्रित निजी अस्पतालों पर, अब थोड़ी चर्चा सरकारी भूमिका की भी। इसकी भी हालत है बद से बदतर। ये हालात तब हैं जब हर चुनाव लड़े जा रहे हैं नागरिक सुविधाओं के नाम पर, रेवड़ी बांटने के नाम पर, निशुल्क सेवा प्रदान करने के नाम पर। इसमें सबसे आगे है ममता सरकार। कुल 78 योजनाएं चल रही हैं लोक कल्याण से जुड़ी हुई। 30 दिसंबर 2016 को बंगाल में मुख्यमंत्री ने शुरू की थी स्वास्थ्य साथी योजना। आयुष्मान योजना की तर्ज पर किया गया था लागू। कार्ड धारक को 22 तरह की बीमारियों में इलाज खर्च मिलता है 5 लाख रुपए तक। राज्य सरकार ने सूचीबद्ध किया है 2290 निजी सरकारी अस्पतालों को। 2 करोड़ 30 लाख निवासियों को किए गए थे कार्ड निर्गत। इस समय बढ़ गई है कार्ड होल्डर्स की संख्या। योजना की मॉनिटरिंग करता है हेल्थ डिपार्टमेंट, साथ में वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी कमीशन। मुख्यमंत्री ममता ने कल की थी प्रशासनिक बैठक, किया था खुलासा इस योजना में बड़ी गड़बड़ी का। एक ही स्वास्थ्य साथी कार्ड पर 3 अस्पतालों ने एक ही समय पर दिखाया है ऑपरेशन को, यानी इस योजना में खुल्लम खुल्ला हो रही है लूट। शामिल हैं इनमें निजी अस्पताल प्रबंधन। जी हाँ, धरती के कथित भगवान। ऐसा लगता है मानो लाश तो लाश ये कफन भी नोच कर खा जाएंगे। दिए गए आंकड़े
53 अस्पतालों पर लगाया गया है जुर्माना। मामले हैं ओवर बिलिंग और मरीजों को दाखिल न करने के। 10 करोड़ 90 लाख रुपए की है जुर्माना राशि। 7 करोड़ आए हैं सरकारी खजाने में। 6 सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ चल रही है जांच। इस तथ्य का भी खुलासा हुआ है। निजी अस्पताल कार्ड धारकों के साथ करते हैं सौदा, दिखाते हैं गॉल ब्लैडर अपेंडिक्स का ऑपरेशन। कागजी होता है ऑपरेशन। कार्ड धारक को मिलते हैं 10,000 रुपये नगद। अस्पताल प्रबंधन बिलिंग करता है 70 से 80 हज़ार रुपये की। तो इस मेडिकल तंत्र में जी रहा बंगाल का निवासी। हर ओर सिर्फ लूट का तंत्र। गुड इंडस्ट्रीज विदाउट एनी चिमनी। न प्रशासन का डर न राज्य सरकार का। ब्रांडिंग के नाम पर लगाए जाते हैं निशुल्क मेडिकल जांच कैंप। मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों को मिलती है फ्री और आरामदायक मेडिकल सेवा। मरते हैं तो केवल आम नागरिक। लाशों पर होता है मुनाफे का धंधा। रानीगंज के महावीर कोलियारी यादवपाड़ा निवासी 38 वर्षीय भीष्म राय गिर गया परित्यक्त अवैध खदान के मुहाने में। घटनास्थल है सियारसोल ओसीपी के पास। निवासियों का है दावा, मुहाना है 120 फुट गहरा। स्थानीय पुलिस दमकल विभाग को दी गई सूचना। इलाका बेहद खतरनाक होने के कारण शुरू नहीं हो पा रहा रेस्क्यू। वार्ड 37 के पार्षद सह तृणमूल शहर अध्यक्ष रूपेश यादव पहुंचे घटनास्थल। निवासियों का है आरोप, पुलिस और ईसीएल के स्तर से क्यों नहीं की गई थी डोजरिंग। आसनसोल की सामाजिक संस्था है संस्कार फाउंडेशन। जरूरतमंदों को 5 रुपए में कराती है भरपेट भोजन। अभियान के पूरे हो गए 5 साल। संगठन सचिव अंकित खेतान ने दी जानकारी। आगामी 5 जनवरी को रविंद्र भवन में आयोजित होगा हास्य कवि सम्मेलन। प्रख्यात कवि सुरेंद्र शर्मा करेंगे शिरकत। पहले भोजन स्थल था पोस्ट ऑफिस के बगल में महावीर स्थान मंदिर। अब मुर्गासोल दुर्गा मंदिर के पास भी चल रही है योजना। अध्यक्ष अविनाश उपाध्याय भी थे मौजूद। आसनसोल के वार्ड संख्या 46 में है कांतिपाड़ा। निवासियों ने लगाया आरोप, रात में खटिकपाड़ा के उपद्रवियों ने किया कई घरों पर हमला। कृष्णा धिवर ने दी जानकारी, हमलावर तलाश रहे थे किसी तपन को। उनके घर पर किया गया भारी पथराव। घटना के समय घर में थी अकेली। ऑटो चालक विश्वजीत दास ने कहा, उसके भाई और पिता के साथ की गई मारपीट। मोहल्ले के कई घरों में की गई है तोड़फोड़। बंटपुर में वार्ड 78 के तृणमूल पार्षद अशोक रुद्रा ने लगाया आरोप, कुछ लोग नगर निगम के विकास कार्यों में बन रहे हैं बाधक। त्रिवेणी मोड़ बारी मैदान के समीप बनाना था सेल्फी पॉइंट। उन्होंने किया दावा, आईएसपी अधिकारियों की मदद से शहर में हो रहा अतिक्रमण। बाजार में किए गए विकास कार्यों का किया जिक्र। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष पर कुमारधुबी गुरुद्वारा सिंह सभा परिसर से निकाली गई प्रभात फेरी। नगर भ्रमण करने के बाद समापन हुआ गुरुद्वारा परिसर में। सिख संगत ने किया गुरुबानी, शबद कीर्तन का गायन। हरजीत सिंह लेहल ने दी जानकारी, 12 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। प्रभात फेरी चलेगी 9 जनवरी तक। 11 जनवरी को निकलेगा नगर कीर्तन। सभा प्रांगण में होगा अमृतपान। डीवीसी के मीजिया थर्मल में छाई तालाब से बरामद हुआ लापता वाहन चालक का शव। तालाब है बांकुड़ा जिले के गंगाजल घाटी थाना के लटिया बनी गांव के पास। मृतक दीपक वाजथा इसी गांव का था निवासी। परिजनों का है आरोप, हत्या कर शव को दफना दिया गया था छाई के नीचे। दीपक कल दोपहर से ही था लापता। शिकायत मिलने पर पुलिस कर रही थी जांच। पे लोडर से मिट्टी हटाने के दौरान मिला शव। पुलिस ने शव को भेजा है पोस्टमार्टम के लिए। नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। दुर्गापुर ए जोन इलाके में स्थित है हॉस्टल एवेन्यू स्टील कॉलोनी। रात में एक घर में आग लगने से मच गई अफरा तफरी। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। निवासियों ने दी जानकारी, बिजली नहीं रहने के कारण जलाई गई थी मोमबत्ती। संभवतः उसी से लगी आग। घर में थे सिर्फ पिता और पुत्र। आग पर नियंत्रण न होने पर फैल सकती थी दूसरे घरों तक। टल गया बड़ा हादसा। पानागढ़ बाजार हिंदी हाई स्कूल में नामांकन के लिए जा रहे हैं 800 रुपए। नियम अनुसार फीस है 240 रुपए। छात्रों और गार्जियंस ने जीटी रोड को किया जाम। आंदोलन के कारण वाहनों का आवागमन हो गया बाधित।
घटनास्थल पर पहुंची कांकसा थाना पुलिस प्रधान शिक्षक जयंत कुमार पांडा ने दी जानकारी। स्कूल संचालन समिति की सहमति से लिया गया ये निर्णय। इससे होगा स्कूल का विकास। यदि गार्जियंस को है आपत्ति तो नहीं होगी अतिरिक्त वसूली। दुर्गापुर सिटी सेंटर के पास स्थित महकमा कोर्ट के सामने देर रात हुई सड़क दुर्घटना। चालक के नियंत्रण खो देने से कई बार पलटी कार। सवार थे निजी अस्पताल के डॉक्टर ऋत्विक चक्रवर्ती और उनकी सहयोगी कार्बी बैनर्जी। सूचना मिलने पर पहुंचे दुर्गापुर ट्रैफिक गार्ड, सिटी सेंटर फाड़ी के पुलिस अधिकारी। दोनों घायलों को भेजा गया अस्पताल। कार जब्त कर लाई गई फाड़ी परिसर में। रानीगंज में 16 से 19 जनवरी तक होगा कोल फील्ड ट्रेड एक्सपो 2025 का आयोजन। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में दी गई जानकारी। चैम्बर अध्यक्ष रोहित खैतान, अरुण भरतिया, प्रदीप बाजोड़िया, ट्रेड फेयर कमेटी चेयरपर्सन महेश खेड़िया, ज्वाइंट चेयरपर्सन शरद कनोडिया, कोऑर्डिनेटर जुगल किशोर गुप्ता थे उपस्थित। उद्देश्य है रानीगंज के औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करना। स्थानीय उद्यमियों को बाजार तक पहुंचने का मिलेगा अवसर। अरुण भरतिया ने कहा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। बाराबनी की ICML रेलवे साइडिंग में सीटू ने किया सभा। इसके पहले इलाके में समर्थकों ने निकाला जुलूस। 2006 में कंपनी ने सड़क सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था 43 युवकों को। फरवरी 2024 में उन्हें कार्य से कर दिया वंचित। लगातार आंदोलन के बाद भी नहीं हुआ उनका पुनः नियोजन। आंदोलन में शामिल हुए पार्थ मुखर्जी, मनोज दत्ता, प्रियव्रत सरकार, कल्याण सिंह, दीपक शर्मा, तपन दास, शेख सफीक, भाई सी मार्डी एवं अन्य। ISP और DSP के डायरेक्टर इंचार्ज BP सिंह नियुक्त किए गए। नालको के CMD। केंद्र सरकार के कैबिनेट से जुड़ी ACC ने दी इसकी मंजूरी। इस आशय का पत्र जारी किया गया 2 जनवरी को। ACC के डिप्टी डायरेक्टर विजय कुमार दराक ने जारी किया पत्र। उनकी कार्यावधि होगी 29 फरवरी 2028 या अगले नए आदेश तक। उनके नाम की अनुशंसा की थी पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड यानी PESB ने।